Very important topic to understand, and we will discuss in this the fetal circulation and the differences between the fetal circulation and the adult circulation. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Okay, let's start the topic. Before fetal circulation we have to understand the adult circulation. तो adult circulation में क्या क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हमें फीटल में देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले हम एक छोटा सा रिव्यू करते हैं कि हमारा एडल्ट का सर्कुलेशन कैसा होता है. सो अगर हम एडल्ट सर्कुलेशन पढ़ते हैं पहले. ओके, अगर मान लीजिए कि ये हमारा अडल्ट का हार्ट है. देयर आर टू सर्कुलेशन इन द अडल्ट. फर्स्ट इज द पल्मोनरी system of circulation, then second one is the systemic circulation. Okay, in the pulmonary circulation what happens, the blood which is purified or which is oxygenated by the lungs, that is the pulmonary system. And the systemic circulation is what, when the oxygenated blood came from the lungs and it transferred to the other body parts, that is the systemic circulation. Systemic means all the systems of the body. Okay, so if we see the process, what happens actually, the blood, the oxygenated blood from the body came into the heart chamber, that is right atrium, from the superior vena cava and the inferior vena cava. It collects to the right atrium. Okay, then what happens, it goes to the right ventricle. Then from right ventricle it turns its way and it goes to pulmonary arteries. Okay, pulmonary arteries, and it goes to the lungs. There the oxygenation part is done and the blood is oxygenated and came to the what, left atrium. Okay, it came to the left atrium, then to the left ventricle, and then it turns to aorta and it is spread to the other body parts of the adult. Okay, so this way the circulation works in the adult. But in the fetal circulation there is a difference between the circulation, because they have the some extra part or some extra opening for the circulation, and the fetus is not able to do circulation by itself because they are so immature. So most of the circulation part is done by the placenta. Okay, before starting the fetal circulation we should know some important temporary openings of the heart of the fetus. That is, first is the foramen ovale. Okay, second is the foramen ovale. कहाँ प्रेजेंट रहता है, सपोज अगर ये हार्ट है, ठीक है, और ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया. तो जो फोरामेन ओवेल होता है वो यहाँ पे होता है सेंटर में, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में. सो दिस वन इज द फोरामेन ओवेल. ओके, नेक्स्ट इज द ductus
वेनोसम। सो डक्टस वेनोसम कहाँ होता है हमारा? ये हमारा हो गया सुपीरियर वेना कावा। देन below this we having the inferior vena cava, and the inferior vena cava is connected with the ductus venosum। ठीक है, तो ये डक्टस वेनोसम में होता है, इसी के थ्रू जो है हमारा प्यूरिफाइड ब्लड जो है फीटल सर्कुलेशन में आता है। अब आप ये कहोगे कि इंफीरियर वेना कावा से तो इम्प्योर ब्लड आता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, बट फीटल में दूसरा होता है। दैट विल आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ओके, सो ये हमारा हो गया वेनोसम, डक्टस वेनोसम। हियर वी हैविंग अ लिवर ऑल्सो। ठीक है, जहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे वो लिवर को भी ब्लड सप्लाई कर देता है। और ये डक्टस वेनोसम किससे कनेक्टेड रहता है? हमारा प्लेसेंटा से। ओके, ये प्लेसेंटा से कवर रहता है। हमारे इसमें एक वेन होती है प्लेसेंटा में, और हमारे 2 आर्टरी होते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 आर्टरी हो गई। ओके, देन थर्ड वन इज द डक्टस आर्टियोसम। डक्टस आर्टियोसम कहाँ होता है हमारा? हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक हमारा होता है पल्मनरी ट्रंक, यहाँ से हमारा पल्मनरी ट्रंक स्टार्ट होता है और यहाँ से हमारा अयोटा होता है। ठीक है, ओके, ये हमारे हो गए लंग्स से जो जुड़ा रहता है। ओके, सो हमारा जो डक्टस आर्टियोसस होता है वो हमारा यहाँ होता है कनेक्शन, इसके बीच में अयोटा और पल्मनरी ट्रंक के बीच में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये आता है कि सपोज समटाइम्स द एग्जामिनर आस्क द स्टूडेंट्स दैट in which part of the aorta that ductus arteriosus is connected, तो आंसर है डिसेंडिंग अयोटा। ओके, तो डिसेंडिंग अयोटा जो होता है, अयोटा के 3 पार्ट्स होते हैं ना, असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, देन डिसेंडिंग अयोटा। तो वो डिसेंडिंग अयोटा से कनेक्टेड रहता है। ओके, सो दिस वन इज द डक्टस आर्टियोसम। fetus having the 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein। ठीक है, तो what is the difference between this is the very important question for the viva also। ठीक है, मेनली डिफरेंस ये पूछा जाएगा कि अडल्ट सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आर्टरीज 2 क्यों होती हैं, एक वेन क्यों होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसका आंसर ये है कि अडल्ट में अगर हम देखें तो आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। ठीक, बट फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेबी से अपने पास लेती है और प्लेसेंटा के पास दे देती है ताकि वो ऑक्सीजनेशन कर सकें। ओके, so here the placenta works as the lungs, same as the lungs, and it purifies and it oxygenates the blood। So and the umbilical vein what it does is ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वो डक्टस वेनोसम में जाता है। डक्टस वेनोसम से ब्लड जो है वो लिवर में थोड़ा दे देता है, उसके बाद फिर वो इंफीरियर वेना कावा से हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है। ओके, अब जब जो बेबी है जब बर्थ हो जाता है फीटस का एंड इट केम इनटू दी वर्ल्ड,
देन दीज होल्स और दीज ओपनिंग्स, टेम्परेरी ओपनिंग्स क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज हो जाते हैं, उसकी भी टाइमिंग है। और ये क्लोज होने के बाद क्या बनाती है, एक रेमिनेंट बनाती है। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो जब वो बंद हो जाता है ओपनिंग, तो वहाँ पे एक लिगामेंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप एक चार्ट जैसा भी बना सकते हो। सो फर्स्ट इज द फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल किस में कन्वर्ट होता है हमारा, फोसा ओवेलिस। फोरामेन ओवेलिस। और दूसरा क्या है हमारा, डक्टस वेनोसम। इट कन्वर्ट्स इनटू लिगामेंटम वेनोसम। बस इसमें लिगामेंट ऐड हो जाएगा, लिगामेंटम ऐड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। थर्ड वन इज दी डक्टस आर्टियोसम। ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, सेम मैंने कहा लिगामेंटम आर्टियोसम। Okay. So this one is the diagram which I have drawn to understand the fetal circulation. So the most important part of the fetal circulation is this placenta. Okay. So and the circulation also starts from the placenta only. So 80% of the oxygenated blood from the mother comes to the placenta, and from the placenta it goes to the umbilical veins. Then from the umbilical vein, where it goes to the ductus venosum, the temporary opening of the fetus, and it from there some of the blood goes to the liver and it's supplied to the liver, and another is supplied to the inferior vena cava, and from the inferior vena cava it came to the right atrium. inferior and superior vena cava से ये हमारा right atrium में आ जाता है. Then what happens, it goes to the right ventricle, जो कि normal है कि right ventricle में जाना ही जाना है blood. But because we having a temporary opening over here between the right atrium and the left atrium, that is foramen ovale, कुछ blood जो होगा वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा. ओके, क्या हुआ था, हमारा प्लेसेंटा था. इट टेक्स 80% ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the umbilical vein to the ductus venosum, then it supplies some of the blood to the liver, then it goes to the inferior vena cava and the superior vena cava, and it came into the right atrium. ठीक है, अब वहाँ पे हमारे पास एक फोरामेन ओवेल आ गया, जिसकी वजह से हमारा कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में भी आ गया. उसके बाद क्या हुआ, जो ये हमारा राइट वेंट्रिकल में था, ये हमारा अब कहाँ जाएगा, इट विल गोज टू दी पल्मनरी ट्रंक. ओके, ये हमारा कहाँ चला गया, पल्मनरी ट्रंक में चला गया. ठीक है, बट पल्मनरी ट्रंक में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे फीटस का हार्ट जो है वो मैच्योर नहीं होता, एंड इट डजंट वर्क्स और इट डजंट हेल्प्स इन दिस सर्कुलेशन. ओके, वो इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं रखता कि हमारा जो बेबी है, फीटस है, वो उसको प्यूरिफाई कर सके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई कर सके. सो क्या होता है, वहाँ पे भी हमारे पास एक होता है temporary opening, that is ductus arteriosum. So what happens when these oxygenated blood goes to the lungs,
because of the pulmonary system pressure is low, it goes to the aorta. ठीक है, aorta में ये चला जाता है इस ओपनिंग की वजह से, डक्टस आर्टियोसम की वजह से. ठीक है, अब जब जाता है तो वो कहाँ जाता है, डिसेंडिंग अयोटा में जाता है, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, वापस नहीं आ सकता है लेफ्ट एट्रियम में. तो वो हमारा डिसेंडिंग अयोटा में चला जाता है, तो वहाँ से कहाँ चला जाएगा, दी अदर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, और मतलब अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में वो चला जाता है अयोटा से. देन यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है. ठीक है, वो लंग्स में गया नहीं, वो सीधे कहाँ चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में चला गया. ओके, सो यहाँ से इसका काम खत्म है. अब यहाँ पे आइए, जो ब्लड हमारा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आया था, उसका क्या हुआ है, जब वो फोरामेन ओवेल से हमारा राइट एट्रियम में आया, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन इट गोज टू दी अयोटा. ठीक है, अयोटा में चला जाएगा, और अयोटा से कहाँ जाएगा, हमारी बॉडीज में. ठीक है, फीटस के बाकी के बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा. ओके, सो ये था हमारा फीटल सर्कुलेशन, जो कि बहुत ही ईजी है. इट लुक्स वेरी टिपिकल बट इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड. इफ यू अंडरस्टैंड वेल देन यू कांट बी फॉरगेट दिस.